औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इंग्लिश के समर टॉप का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज read this passage carefully and put the words in their relevant columns. Okay, now you have to read this passage carefully and after that you have to fill their relevant columns. Okay, now what are the columns? Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. Okay, as you all know, noun is the name of a person, place, animal, or thing. Pronoun we use in place of a noun. Verb, an action word. Adjective, which tell us something about a noun. Adverb, which tell us something about verb. Preposition, show the position. Conjunction joins the sentence. Interjection, sudden feeling or emotion. Now, first is done for you. For example, in this passage, noun was Miss Shamim, as Mrs. Shamim was name of a woman, ठीक है, a person. Second is pronoun. Here a pronoun is she. Third is a verb. For example, any verb like shouting. Third is adjective. Adjective is obedient student. Okay, obedient student. So obedient is an adjective. Preposition is in. Conjunction and an interjection is wow, what a brilliant class. Hope so, students, you have understood now and you can do it by yourself. Now, there comes the second question. Adjectives formation. Okay, as we know that adjective tell us something about a noun. Now, adjective formation. How we form an adjective. हम adjective किस तरह बनाते हैं? Many adjectives are formed by adding OUS to a word. For example, dangerous, prosperous, pompous, righteous. Okay, a lot of adjectives are made by adding only OUS to a word. For example, danger is a word. We use dangerous. We add OUS and it turns into dangerous. ठीक है? It turns into a adjective. Okay, sometimes spelling changes are made when OUS is added. Okay, कभी-कभी ऐसा होता है हमें spelling change करनी पड़ती है. Like number 1, drop final E. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कहीं किसी वर्ड में ई आ रहा था तो हमें एंड वाला ई जो है वो ड्रॉप करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, स्पेलिंग चेंज करनी पड़ती है एडजेक्टिव फॉर्मेशन के लिए OUS को ऐड करनी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेम है, ई था, नेक्स्ट हो गया फेमस. OUS ऐड करने के लिए हमने ई को कैंसिल कर दिया, ड्रॉप कर दिया. नंबर नेक्स्ट इज चेंज वाई टू आई. अगर किसी स्पेलिंग में वाई आ रहा है तो उसको हम आई से चेंज कर देते हैं, IOUS लगाते हैं. For example, there is fury, so we will turn it into furious. We change it Y into I. Double the last letter. In some spellings, we have to change and increase the spelling. कुछ में हमें spelling को double करना पड़ता है, last letter को हम double कर देते हैं कुछ words में. For example, there is marble. There was a single L. यहाँ पे single L था, लेकिन जब हमने इसको adjective में change किया तो हमारे पास marvelous में double L आ गया. Okay. ड्रॉप अ लेटर. फिर हमें कई दफ़ा जैसे पहले बात हुई है कि हमें कुछ लेटर ड्रॉप करने पड़ते हैं. कुछ और चेंजेस जो हैं वो इस तरह होती हैं, जैसे मिरेकल है तो मिराकुलस, ठीक है, ई ड्रॉप करके हमने OUS ऐड किया. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन इज राइट द मिसिंग एडजेक्टिव व्हेन इन डिफिकल्टी कंसल्ट योर डिक्शनरी. ओके, आपने अब इनके वर्ड जो आपको दिए हुए हैं इनकी आप इनको एडजेक्टिव में चेंज करना है. ओके, नंबर फर्स्ट सेकंड इज अ पर्सन हु हैज वॉन फेम इज. अब फेम है, वी विल ड्रॉप ई. हम एक लेटर ई है तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे और OUS लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, फेमस. सिमिलरली अ पर्सन हु एनविज अदर इज एनविज. ठीक है, IES है, हम ES को चेंज कर देंगे OUS से, तो इट विल टर्न एनविज. अ गेम विच इज प्लेड विद विगर इज विगरस. ओके, OUR था, हमने उसको चेंज कर दिया OUS से, ROUS. ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी. अब बाकी कि आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. इसमें जो नीचे आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी सिमिलरली आपने इनको इसी तरह एडजेक्टिव को जो बोल्ड में दिए हुए हैं को चेंज करना है. ओके, आई एम डूइंग द वन फॉर यू. द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सोयर इज अ डैश स्टोरी. इन द बोल्ड यू हैव गिवन ह्यूमर. ओके, नाउ यू हैव टू चेंज द ह्यूमर इनटू एडजेक्टिव. हमें पता है एडजेक्टिव में चेंज करना है तो यू यूज OUS. तो यहाँ पे स्पेलिंग चेंज हमने कर दी तो ह्यूमरस ROUS आ गया. सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा. अब बाकी के क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे.
So students, now it is the turn for your last question. Okay, what are phrases? Sentences also often contains words that are used together in a small group with a particular meaning. These group of words are called phrases. We have already studied that phrases are not complete sentence. They are either a part of a sentence, a small group with a particular meaning. ठीक है, कभी कभी जो है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम सेंटेंस के साथ यूज करते हैं ज्वाइन करके, और उससे कंप्लीट एक सेंटेंस का हमें मीनिंग मिलता है। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो है वो हम कहते हैं फ्रेजेस। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ कॉमन फ्रेजेस दी हुई हैं, आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। इनको अपने सेंटेंसेस में यू हैव टू यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। फर्स्ट इज बाय द वे। ओके, बाय द वे, अब इसका सेंटेंस होगा बाय द वे आई विल कम टू योर हाउस टुडे। ओके, आई विल कम टू योर हाउस टुडे, आज मैं आपके घर आऊँगा। थ्रू द जंगल, द हंटर्स फॉलोड द लेपर्ड थ्रू द जंगल। ओके, जो हंटर शिकारी ने जंगल के दरमियान में से चीते का पीछा किया। ठीक है, जंगल में से। ठीक है, वंस मोर, एक दफ़ा फिर, आई वुड लाइक टू विजिट माई स्कूल वंस मोर, मैं अपने स्कूल को एक दफ़ा फिर विजिट करना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे, आगे पीछे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे ट्रेवल टू एंड फ्रो बिटवीन लंदन एंड पेरिस। ओके, वो लंदन और पेरिस के दरमियान आगे पीछे सफ़र करते रहे हैं। इसी तरह से आपको जो बाकी फ्रेजेस दी हैं इनको आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है और इससे सेंटेंसेस बनाने हैं। होप सो स्टूडेंट्स, आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा और आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।